Hey, welcome to the Afterclass. In this episode, I have a very special guest with me, Mrs. Sonia Chaudhary. She's been teaching chemistry for over 27 years and she's worked with elite schools like DPS. She's also been a mentor to me, and the best part about her is that whenever I feel stuck at any point, she never motivates me but instead gives me a little bit of perspective. And I love that. Why? Because when you motivate someone, you give them a will to move, but when you give someone a perspective, you show them one tiny step that they can take. And that one tiny step further gives them the will to move. Now, I won't take much of your time and let this podcast sink in. If this podcast brings you any little value, hit the like button. Share this video with someone who might need to see it. And don't forget to subscribe to the channel to avoid missing any episode. Enjoy. ठीक है तो वो क्लैप आप दोगे? तो दे देना क्लैप। चलो एंड एक्शन। Okay, ma'am. First of all, thank you so much for taking some time out for this podcast. How's it going? It's my pleasure that I am able to talk to you, Anna, after so many years like this, and everything is going well. I think it should be the other way around. Now, It should be the other way around that I've got to talk to you like this. फोन पे तो बात होती रहती है. It is both ways, है ना? हिंदी में बात कर सकते हैं? कैसे भी कर सकते हो. आराम से ना, हाँ, मतलब जिसमें ज़्यादा हो जाए, हाँ. पंजाबी भी चलती है. Don't say ना, मैं मॉडल स्टार्ट कर सकती हूँ. This is something which I personally have taken from you, क्योंकि हम लोग बात करते रहते हैं बीच-बीच में. बात करने वाले को और सुनने वाले को, जो स्टूडेंट है ना, उसको भी बहुत फ्रेश फीलिंग आती है. Now they give a call by themselves. तो सही लगता है. तो 11 साल 12 साल आई डोंट थिंक दैट मैटर्स. भाई जब तक वो कम्युनिकेशन बना हुआ है अच्छा है. नहीं, one should try definitely. जब तक रहेगा अच्छा है. Why not? At the end of the day, we are human, ना? So we need to talk to each other. We need to share. Now sharing is the best thing. It can be one can share experience like we are sharing. You have also got so much of experience. कितने साल से तू पढ़ा रहा है, कितना experience हो गया. You have learned so much. So I can learn something from you. I have seen all my life, because I'm teaching since '94. कि children, they teach you really so much. They tell you so much. It's all that you have to be very open in your thinking. कि you are, because you are a senior in terms of age, तो आप ही नहीं है जो बच्चे को कुछ ज्ञान दे सकते हैं. बच्चा आपको वापस मुड़कर कितना ज्ञान देता है. आई रिमेम्बर जब 2 साल पहले लास्ट ईयर वो ऑनलाइन हुआ, तो मुझे बच्चों ने बचाया. मैम टेंशन नहीं. इट यूज्ड टू बी, अरे ऑनलाइन है, अरे वो जूम कनेक्ट नहीं हो रहा, वो नेट काम नहीं कर रहा. नाउ व्हाटएवर आई एम कंफर्टेबल, चिल्ड्रन हैव प्लेड ग्रेट रोल. And I am in this profession because most of the time, because I like their energy. वो किसी भी बात पे हंसना, मतलब कोई रीजन नहीं है पर वो हंस रहे हैं. और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम रीजन ढूंढते रहते हैं. इस पॉइंट पे हंसना है, इस पॉइंट पे नहीं हंसना. सामने वाला क्या बोलेगा. बच्चों के साथ रह के ना ये बहुत मजा आता है. वो किसी भी बात पे हंस रहे हैं. उनको मतलब एक छोटी सी बात है, एंड इफ दे अलाउ यू टू बी इन दैट डिस्कशन, तो फिर तो नथिंग लाइक दैट दे फील. मैंने बहुत, इसलिए वो बच्चों की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, दैट इज ओनली ड्राइविंग फोर्स दैट आई एम स्टिल टीचिंग एंड स्टिल वर्किंग. सो आई लाइक किड्स इन दैट वे. I read somewhere कि टीचिंग की बेस्ट पार्ट ये है. हाँ, I was watching a video by संदीप महेश्वरी. उसने बोला था कि टीचिंग की बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप हंस रहे हो ना, तो बच्चे साथ हंसते हैं. लेकिन एडल्ट्स के साथ वो चीज़ ट्रू नहीं है. एक वो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, तो आपको कहीं ना कहीं वो पुश मिल जाता है. आप चाहे बीमार हो, कुछ भी हो, तो ना एक वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है, तो आप कर जाते हो जैसे तैसे. तो ऑनलाइन कैसे, मतलब आपको मुश्किल कुछ ज्यादा ही हो गई क्या? नहीं, ऑनलाइन एक नई चीज थी. कभी दिमाग में था नहीं कि ऑनलाइन आऊंगी. कभी ऐसा सोचा नहीं था, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेक्नोलॉजी से मैं थोड़ा पीछे रहती. मतलब मुझे नहीं लगा फोन भी उतना कि व्हाट्सएप चल जाए.
ना ये emails and this and that, no, because पता नहीं, I have got my own reservations in my mind probably, so मुझे लगा कि कैसे होगा, तो I remember वो जो मेरा फर्स्ट डे था, तो मैंने अपने वो बेस्ट बच्चों को कॉल किया, डेमो लिया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं वो पिछले अपने सालों में जा रही हूँ कि जब आज मेरी फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास, और मैंने अपनी मम्मा को बिठा के बोला कि मैं बोर्ड पे लिखूंगी, आप बताना मैंने ठीक लिखा कि नहीं। वही चीज मैंने 2 बच्चे बिठा लिए, मैं बेटा वॉइस ठीक आ रही है, बोर्ड ठीक दिख रहा है, मैं समझा पा रही हूँ, तुम सचमुच समझ पा रहे हो, मतलब वो चीज मुझे 6 महीने कि मुझे बच्चों का एक अप्रूवल चाहिए था कि नहीं मैम आप वैसे ही पढ़ा रहे हो जैसे आप क्लास में पढ़ाते हो, तो वो बहुत ज्यादा मेरे लिए मैटर करता था। फिर वो बच्चे ही हेल्प करने हैं, वो कि असाइनमेंट, फिर वो नए तरीके असाइनमेंट भेजने के, राइट, वो आप कट एंड पेस्ट करेंगे, फिर आप पीडीएफ बनाएंगे। भाई हम तो वो थे जो पेपर लिखा, खुद हाथ से लिखा, मैक्स टू मैक्स फोटोकॉपी करा लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो भेजना, फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, ये मेरे मतलब ये सारी चीजें मेरे लिए पहली बार थी। तो मैंने खुद को बोला थोड़ा तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा सिचुएशन के साथ, अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगी तो बहुत मुश्किल होगा। आइदर आई क्विट और आई टेक इट वेरी सपोर्टिंगली कि कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छा नहीं है कोविड एक तरह से अपने आप में, बट उसमें और बेस्ट क्या देख सकते थे, कुछ नया सीखा है ना, मेल्स भेजने सीखे, बच्चों को रिकॉर्डिंग्स भेजनी सीखी, मतलब मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। कंपोज, खासकर वो जो जीमेल पे वो कंपोज वाले बटन को अब जैसे मैं हैंडल करती हूँ, वो शुरू में तो मेरे हाथ पांव फूल जाते थे कि अरे ये कंपोज का बटन है, बच्चे मुझे बताते रहते थे मैम ऐसा करते हैं, वो कॉपी पेस्ट करना, वो सारी चीजें, तो वो बहुत अच्छी चीज मैंने सीख ली ऑनलाइन में, और वो मुझे बड़ी खुशी देती है, एटलीस्ट मुझे वो डर खत्म हो गया, राइट। अब बच्चों को लगेगा कि क्या छोटी सी बात है, ये कोई डरने की बात नहीं, बट बहुत फर्क है ना, हमने कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं, और मुझे जब मौका भी मिला तो मैं शायद थोड़ा सा पीछे ही रहती थी, मुझे लगता था उससे बेटर मुझे वो जो किताबों में खुशबू आती है ना पन्नों में पलटने से, वो जो मुझे खुशी देता था ना, मुझे वो किंडल पे भी जो मेरे पास है वो मुझे नहीं खुशी देता, वो पन्ना पलटना, उसमें वो टच किया पन्ना पलट गया, ना तो वो खुशबू आ रही है ना वो फील आ रहा है, तो वो चीज शायद थी जिसने मुझे हमेशा रोका कि नहीं, मुझे ना कंप्यूटर पे मतलब मुझे नहीं सीखना, इतना सीख लिया जितना काम चला दिया, पर नाउ आई एम लाइकिंग इट, वन वे ऑफ अनदर आई एम लाइकिंग इट, क्योंकि मैं अपने अच्छी बात ये थी कि मुझे बहुत ऐसे अच्छे बच्चों को पढ़ाना शुरू का मौका मिला जिनको मैं नहीं पढ़ा पाती, दिल्ली के थे, मेरे 2 स्टूडेंट फिनलैंड में थे, ट्विंस ब्रदर, तो अगर ये ऑनलाइन ना होता तो मैं नहीं पढ़ा पाती। Liking it more than offline, or if you were given a chance then you would go back to offline? If given me a chance, I would like to go offline, say 3 days in a week offline and 3 days in a week online. Hybrid. Why 3 days in a week online? Because I would like तो बच्चों की एनर्जी, उनकी स्माइल्स, उनका वो क्लास में लड़ना सीट के लिए, इसने मेरी कॉपी छीन ली और इसने मेरा इरेजर ले लिया, वो वाली सिली फाइट, बच्चा गेम्स पीरियड के बाद क्लास आ रहा है और आप क्लास में पहले आ चुके हो और मैंने चिपकने लगा दी है, और वो बाहर मेरे से मिन्नतें कर रहा है, प्लीज मैम आने दो। अच्छा आपको मजा आता है उसमें? नहीं, उसमें मुझे ये मजा आता है कि वो मुझसे वादा कर रहा है, राइट, और अभी वो वादा फिर तोड़ेगा, अगली बार फिर तोड़ेगा, राइट। अब मुझे ये देखना है कि वो कितने वादे तोड़ता है, फिर वो पूरी क्लास का चिल्लाना, मैम नहीं आपको याद नहीं पिछली बार इसने यही किया था, मैम मत खोलो, फिर वो क्लास में ऐसे हम हंस रहे हैं, तो वो चीज नहीं हो रही ना ऑनलाइन में, तो उसके लिए मैं 3 दिन ऑफलाइन जाऊंगी और 3 दिन ऑनलाइन, तो दोनों में अपनी अपनी बातें हैं। अब मजा आ रहा है धीरे धीरे ऑनलाइन में, बट ऑफलाइन तो फिर भी अलग चीज है। मेरा स्टूडेंट तो इतना परेशान हो गया था एक, क्योंकि वो नॉर्मली जब लेट आता था तो बोल देता था कि स्कूटी पंचर हो गई है, तो फिर एक बहाना है जो मैं एक्चुअली बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं है, वो ये कहते थे कि सर नेट नहीं चल रहा है, और फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल देंगे तो व्हाट्सएप मैसेजेस भी डिलीवर नहीं होंगे,
तो वो काफी अच्छी चीज है, मतलब दैट इज समथिंग व्हिच आई अप्रिशिएट कि हाँ चलो तुम दिमाग तो लगा रहे हो, एटलीस्ट बुक स्मार्ट नहीं तो स्ट्रीट स्मार्ट तो हो ही रहे हो। नहीं नहीं माधव, इसमें तो बेटा ही बहुत तेज है, मैं धीरे धीरे उनको काउंटर करती हूँ। पहले तो यही हो रहा होता था, मैम ये चला गया, मैम वो चला गया, मैम मेरा नेटवर्क ही चला गया। तो अब जब कोई ऐसी बदमाशी करता है ना, मैं उसके पेरेंट को कॉल कर लेती हूँ। मैम आपका नेटवर्क नहीं है? नहीं नेटवर्क तो है। मैंने कहा आपका बच्चा तो बोल रहा है कि नेटवर्क नहीं है। सो मैं मुझको भी मतलब इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स नॉट इजी टीचिंग ऑनलाइन, नॉट एट ऑल, क्योंकि आप किसी को देख तो पा नहीं रहे हो, आपको ये भी नहीं पता वो कॉपी में आपकी कितनी फोटो बना चुका होगा अब तक, यू नेवर नो, है ना, वो क्या ड्राइंग कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कुछ खेल रहा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मैं हर बच्चे का 1 घंटे में ना बेटा कम से कम 10 बार नाम तो ले ही लेती। हाउ डू यू टैकल इट? अब एक सेशन में अगर आपके 50 बच्चे बैठे हुए हैं, देन हाउ डू यू मेक श्योर कि एक बच्चे को प्रॉपर अटेंशन जाए, दैट टू ऑनलाइन में जब वीडियो ऑडियो ऑफ रहती है? That's the reason the strength of my online classes is not much. Okay. Not much, right? Not much because I want कि I can keep a track of them. तो मुझे जब मैं बार बार बोलूंगी कि अरे कहाँ हूँ, वो मैंने क्वेश्चन बोला था, उसका आंसर भेजो, इमीडिएट आंसर भेजो, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। और ये तभी हो सकता है जब आप कम बच्चे पढ़ाते हैं। तो इंटेंशनली बिकॉज यू नो मी नाउ, तो टीचिंग 28 इयर्स हो गए, तो अब मुझे लगता है मुझे कम बच्चे पढ़ाने, अब मुझे क्योंकि पढ़ाना ही ऑनलाइन है, तो मुझे अच्छे मजेदार बच्चे जो इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, ना कि बेकार में पेरेंट्स का पैसा वैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको ऐसी बेटा देखती हूँ। अचानक किसी को बोल दिया इसकी क्वेश्चन तूने सॉल्व किया, बच्चे ने बोला हाँ मैं, फोटो खींच 10 सेकंड में पिक आ जानी चाहिए, फोटो खींच के 10 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड। सो इन दैट वे मुझे लग रहा है कि मैं भी थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हो गई हूँ। उल्टा मुझे लगता है ऑफलाइन में फिर भी हो सकता है, पीछे वाला बच्चा बेटा क्या कर रहा है, राइट? तो कोशिश है, पर फिर भी बच्चे तो बच्चे, वो तो कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं किसी किसी चीज से। बॉटल नेक्स्ट थोड़े बहुत तो रह ही जाते हैं। हाँ, फिर भी कोशिश है। तो इसमें मतलब जो सब एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मैंने पर्सनली फेस किया है वो ये है कि ऑनलाइन में आप इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टेस्ट हुआ है तो वो टेस्ट जो है वो ईमानदारी से हुआ है कि नहीं है। कुछ वेबसाइट्स है codetantra.org वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं, बट इतने लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी टेस्ट ले रहे हो और बच्चे ने PDF बना के भेज दिया, हाउ कैन यू फिगर आउट कि वो उसने ठीक किया है या नहीं किया है, मतलब चीटिंग से तो नहीं किया। अब उसमें आप वाइवा ले सकते हो उस टेस्ट का कि भाई आपने जो लिखा है ये क्या सोच के लिखा, तो उससे पता चल जाएगा कि उसने अपने आप लिखा भी है कि नहीं लिखा, बट वो भी शॉर्ट लिव्ड सी चीज है। फिर उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है माधव, कि पहले जैसे कोई पेरेंट आते हैं तो मैं उनको कह देती हूँ देखिए मैं ऐसा है कि मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, तो उसमें मुझे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं टेस्ट सिर्फ पेरेंट्स को ही भेजती हूँ, पेरेंट्स को बोल देती हूँ कि इस दिन 6 to 7 o'clock टेस्ट है, आपने इंश्योर करना है, पेरेंट को पता होना चाहिए कि आप चॉइस कर रहे हैं ना बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो आपको बराबर की जिम्मेवारी फिर लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अब टीचर ही करेगा, ऑफलाइन का हम लोगों ने सारा लिया, राइट? आपके पास चॉइस है, क्योंकि कोई जबरदस्ती तो किसी को कह नहीं रहा कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है। मार्केट में चॉइसेस अभी भी हैं, आप ऑफलाइन जाइए, देखिए रिस्क लेना है। अब आपको ऑनलाइन ही पढ़ाना है तो फिर आपको भी उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट होना पड़ेगा ना। तो मैं उनको बोलती हूँ टेस्ट पेपर आप ही के पास जाएगा, टेस्ट पेपर आप ही के पास जाएगा, इंश्योर आपने करना है कि ये 6 to 7 वहां पर बैठ के आपके सामने कर रहा है, राइट? आपके पास टाइम नहीं, वो आपको देखना होगा। आप वापस मुझसे नहीं कह सकते ना बेटा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं होगा माधव, मैं तो ये इंश्योर ही नहीं कर पाऊंगी। हाँ, इसके बावजूद भी हो सकता है कि मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जो टेक्नोलॉजी से भी नहीं है, उनको भी बच्चे कुछ ना कुछ घुमा के 2-4 कर लेंगे दाएं बाएं, फिर मैं की भी पेरेंट्स को ही भेजती हूँ। तभी आप भी चेक कीजिए अपने बच्चे का पेपर, बच्चे ने मुझे PDF बना के भेज दिया, ठीक है, कि मैंने पेरेंट को भेजी, आप इसके आंसर चेक कीजिए, और उसको फिर मैंने डबल क्रॉस किया। तो पेरेंट्स को जब तक मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगी ना, तो देन तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं पेरेंट्स को एक्चुअली इन्वॉल्व करती हूँ, उसमें शायद मुझे लगता है कि 70-80% ऑनेस्टी के साथ पेपर हो जाता होगा। 30% की विंडो अभी भी खुली है कि गड़बड़ होती होगी। बट
काफी मेजॉरिटी है पेरेंट्स की भी, जो नॉर्मली क्या करते हैं कि क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो वो भी बहुत कैजुअल हो जाते हैं, और फाइनली जब रिजल्ट खराब आता है देन दे सडनली वेक अप। हाँ, तो इसीलिए तो मैं हाँ इसीलिए तो मैं सॉरी देखो बीच में रोक रही हूँ, इसीलिए पेरेंट्स को डे वन से इन्वॉल्व कर रखे होता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। मेरा जहां तक है, मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है राइट टेस्ट बनाना, मेरा काम है टेस्ट का एनालिसिस करके डिस्कशन करके भेजना, एमसीक्यू कराना। लेकिन आपके एंड पे तो आप ही देखोगे ना। हाँ तेरी बात सही है बिल्कुल, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता और लास्ट में वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। इसलिए ऑनलाइन में तो ब्लेम गेम का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। आप कैसे टीचर को कैसे ब्लेम कर सकते हो कि वो आपके घर पे 500 किलोमीटर दूर अगर आप बैठे हो, वो देख ले आपका बच्चा क्या कर रहा है, वो तो आपकी जिम्मेवारी हुई। इट्स अ हार्ड टाइम, सो एवरीबॉडी हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ना। या तो बच्चा ही, इसलिए माधव मैं बच्चे बेटा वो पढ़ाती हूँ जो हाईली कैरियर ओरिएंटेड है। वो तो उल्टा मैम रात को 9 बजे मेरी आकाश खत्म होगी तब मैं टेस्ट दे दूँ। हाँ बेटा तू कभी भी दे, तेरा लाइफ तेरा कैरियर बेटा, जो तू कर रहा है अपने कैरियर के लिए कर रहा है, तो नकल कर, बहुत अच्छी बात है, तेरी पर्सनल चॉइस। तुझे नकल नहीं करनी वो भी तेरी पर्सनल चॉइस, बियॉन्ड कंट्रोल वो चीज। हाँ बट क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अमिड ऑल दी अनसर्टेनिटी कि भाई फेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जो बोर्ड्स 2021 वाला जो अभी रिजल्ट आया है, ये आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या ये ठीक स्टैंड करता है या इसमें गड़बड़ है? बोर्ड 2021 के रिजल्ट में अगर मैं बोलूं कि मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं कि नहीं हूं, इतना हल्ला मचा, ये जो रिजल्ट है, एक बात बताई जाए, बच्चों को तो नहीं पता था ना जब सेशन शुरू हुआ था कि उनके साथ ऐसा होगा। मैंने जितने भी माधव बच्चे पढ़ाए मेरे पास, तो तुझे पता ही है सारे बच्चे अच्छे ही होते हैं, तुम लोग थे सारे पढ़ने वाले ही बच्चे होते हैं, 2-4 को छोड़कर जो पेरेंट्स के डर से बैठे होते हैं, बाकी तो खुद ही चूज करते हैं कि चलो जाओ सुने हमसे पढ़ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स के पास होते हैं, माधव के पास पढ़ने के लिए आते होंगे, चलो माधव सर से पढ़ने जाते हैं, किसी और टीचर से पढ़ने जाते हैं। हर टीचर का अपना अपना एक काइंड ऑफ टीचिंग है, उसके हिसाब से उसका एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट करता है वो बच्चों को और वो पढ़ा लेता है ना। तो ऐसे वो बच्चों ने, तो जब वो बच्चे मेरे पास आए पढ़ने, हमने पढ़ना शुरू किया, तो ना तो मुझे पता था ना बच्चों को पता था कि ऐसे होने वाला है, तो बच्चे तो ईमानदारी से पढ़े ना। उन्होंने क्या नहीं करा, जो पढ़ने वाला माधव नहीं है बच्चा बेटा, वो तो वैसे भी नहीं पढ़ने वाला है, जब अगर वो भी जाते एग्जाम तो वैसे भी नहीं पढ़ना था। तो जो सारे अच्छे बच्चे, तूने भी देखा होगा, तेरे पास भी तो बहुत सारे अच्छे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत सिंसियर बच्चे होते हैं जिसको तुमने कभी डांटा भी नहीं होगा, ऊंची आवाज में भी बात नहीं की होगी, तो वो वाले बच्चों को तू खुद देख, कब लगा तेरे को कि ये पढ़ नहीं रहे। ऐसे ही हमने तो बच्चे को पढ़ाया, बच्चे ने भी बहुत सीरियसली पढ़ा, वो तो बच्चे को मार्च में जाके पता चला ना, या कि पेपर में नहीं होंगे काइंड ऑफ, तो बच्चे ने तो पूरी तैयारी करी थी ना। हाँ इनफैक्ट मुझे उन, तू ऐसे बोलेगा कि बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आया, वैसा तो नहीं आया, ऐसा तो नहीं आया, क्योंकि अब ऑब्वियसली ह्यूमन इन्वॉल्व हो गया, डायरेक्ट ह्यूमन। अब मैं इस बच्चे को जानती हूँ, मेरा इसके साथ ठीक नहीं है, मुझे इसकी 4 बातें अच्छी नहीं लग रही है ना। अब तो बायस्ड हो गया चीजें, बायस्ड हुई है, कुछ रिजल्ट मुझे ठीक भी नहीं लगे पर्सनली स्पीकिंग, और मुझे पता था वो होंगे भी होंगे, चाहे वो अप हुए चाहे डाउन हुए, है ना। जो भी है वो तो चलो, अगर सीबीएसई में भी हम पेपर देते तो आप समझते ही है ना, हमको लगता है कि हमारे 90 आएंगे, तो कभी 92 आ गए, कभी फिर 88 भी आ गए, वो चीजें फिर हमने ओवरलुक करी। लेकिन बच्चों ने तो भाई पूरी तैयारी करी थी ना। और अगर आप बोले कि कुछ बच्चों को तो बहुत नंबर आ गए हैं, ठीक बात है, तो उससे क्या उनको बहुत कुछ फायदा होगा? फायदा तो लास्ट में उसी बच्चे का होने वाला है ना माधव, जिसने बेटा पूरे साल पढ़ाई करी, क्योंकि एंट्रेंस तो अब उसी का क्लियर होगा। सिर्फ मुझे उन बच्चों की चिंता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं शायद, क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास कि वो इन सारे बच्चों का एमसीक्यू का टेस्ट लेगा और उसके बेस पे बोलेगा कि आप इंग्लिश ऑनर्स में आपको मिल जाएगा और नहीं मिलेगा? मुझे उसके बारे में डाउट है, क्योंकि नंबर तो सबने बांटते हैं, सारे बोर्ड बांटेंगे, बांटने भी चाहिए, सीबीएसई बोर्ड क्यों बांटेंगे? यूपी बोर्ड नहीं बांटेगा, वहां के बच्चों को राइट नहीं है,
बिहार बोर्ड के बच्चों को राइट नहीं है, हरियाणा बोर्ड कितना टफ बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड, ये बोर्ड बहुत टफ है। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड इज द इजीएस्ट बोर्ड। बाकी स्टेट बोर्ड बेटा अगर तू नजर डालेगा इतने टफ बोर्ड है कि, क्योंकि मैं भी स्टेट बोर्ड से थी जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, राइट। मेरा तो मानेगा नहीं, मेरा 4th लिस्ट में जाकर एडमिशन हुआ नॉर्थ कैंपस में। क्यों? क्योंकि मैं हरियाणा बोर्ड से थी और हरियाणा बोर्ड में तो नंबर मिलते नहीं थे उतने, बहुत ही सख्त बोर्ड था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीबीएसई इज ऑन द लाइटर साइड है, लाइटर साइड पे मॉडरेशन होती है, ये सब होती है। हमने तो हमारे जमाने में नहीं सुना था कि मॉडरेशन भी कोई चीज होती है। जितने नंबर हुए तो 4th लिस्ट में जाके कहीं एडमिशन हुआ, राइट, नॉर्थ कैंपस में। आज की डेट में अगर वही सिचुएशन होती तो फिर तो स्टेट बोर्ड के बच्चों को तो कुछ होगा ही नहीं का एडमिशन, तो उनकी कोई गलती थोड़ी ना। अब एडमिशन होने के बाद जब वहां पे पढ़ाई शुरू करी तो फिर बराबर की टक्कर दी सबको, अब वो सब बराबर हो गए, मैं आगे वो पीछे। तो बाद में तो लास्ट में तो फिर नॉलेज की बात आ जाती है ना। सिमिलरली अब बोर्ड में अगर कुछ बच्चों के साथ, अब 1-2 बच्चों के, जैसे मुझे बच्चों ने बताया कि मैम ये हमारा क्लासमेट है, इसका जेईई एडवांस पक्का है पर उसको 87% मिले। तो अगर आप देखें 13% सीबीएसई बोर्ड में तो आज की डेट में बहुत बड़ा है। हम तो 95% वाले को कहते हैं नालायक, साथ में लेके देख 96% है। शर्म आनी चाहिए, सिर्फ 95%। हर चीज तो नंबरों पे फोकस है हमारी कंट्री में। स्टेटस सिंबल बना रखा है, पेरेंट्स बच्चों को ट्रॉफी की तरह डिस्प्ले करते हैं, देखिए ऐसे। अरे क्या फर्क पड़ गया 2 नंबर कम है? तो कहने लगे मैम वो जो नालायक था उसके 95% है, जबकि उनको पता है उसका कुछ भी नहीं होने वाला। और जिसका जेईई एडवांस ऑलमोस्ट क्लियर है, बच्चों को लग रहा है, बच्चों को भी लग रहा है 87%। तो बेटा इसलिए मुझे नहीं लगता कि बोर्ड के नंबरों का जस्टिस इनजस्टिस, सिर्फ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर आप कंसर्न है, वो कैसे करते हैं एडमिशन। तो यहाँ पे बेसिकली जो लूप होल्स, पता नहीं कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बट फैक्ट ऑफ द मैटर कि लूप होल्स जो है अभी वो फिलहाल सिस्टम के हैं। तो सिस्टम के लूप होल्स को करेक्ट करने की बात करें, मतलब रिफॉर्म्स की बात करें, वो बहुत बड़े लेवल पे रिफॉर्म हो जाता है। ऐसे क्या तरीके हैं जो हम हाउस होल्ड लेवल पे ठीक कर सकते हैं, ताकि अगर एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज नहीं भी आता, कुछ भी बेटरमेंट अगर नहीं भी होती है, तो किसी बच्चे के एजुकेशन अब्सॉर्ब करने के तरीके में बेटरमेंट हो जाए। मतलब आई एम ट्राइंग टू आस्क अबाउट 1 or 2 things that parents can do, or there can be a coordination between the parent, student and the teacher, जिसको अप्लाई करके हम किसी बच्चे की एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द सिस्टम टू चेंज। लेट मी इलैबोरेट अ लिटिल बिट ऑन द क्वेश्चन। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर एक बच्चा था जिसके पेरेंट्स के साथ एक बार मेरी डिस्कशन हुई थी, एंड देन व्हाट वी डिड वाज कि हमने बोला कि एक काम करते हैं कि सपोज 5 चैप्टर्स अगर आ रहे हैं इसके टेस्ट में, लेट अस मेक हिम प्रिपेयर ओनली 3 चैप्टर्स। तो वो 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करता था क्योंकि वो 5 तक पहुंच ही नहीं पाता था, और वो पहुंचता था तो वो सारा गड़बड़ कर देता था। तो वो 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करता था, जब हो जाते थे तो रिपीट करता था, 3-4 बार वो रिपीट करता था, और उसके बाद जो उसके मार्क्स आते थे वो सिर्फ उन 3 चैप्टर्स के लगाते थे हम लोग, मतलब उन 3 में से कैलकुलेट करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि सपोज 50 में से उसने 30 का अटेम्प्ट किया तो उसके 30 ही आ रहे और उन्हीं में बिल्कुल वही करेक्ट आ रहे जो उसने अटेम्प्ट किया है। एंड देन दे यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। तो उससे क्या हुआ कि एक तो उसका क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो गया पेपर करने का, दूसरा कि उसको जो कॉन्सेप्ट था ना, कॉन्सेप्ट का होल्ड बहुत अच्छा बन गया, और करते करते ही डिड वेरी वेल इन हिज बोर्ड एग्जाम्स एटलीस्ट। तो एक ये छोटा सा टूल था कि रादर देन कवरिंग द होल सिलेबस, एक पोर्शन कवर करके और फिर उसको रिपीटेडली करे, वो उसके पेरेंट्स का मूव जो था जिसपे वो अग्री किए थे वो बहुत अच्छा था। तो दैट वाज समथिंग which could be done on a household level. I agree. I have understood what you have said, and I have done this thing so many times. But as I've got more experience than of course. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. The number of right. So I have interacted more with the parents. You won't believe. मेरे पास जैसे मान लो दिसंबर हो गया और अभी हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं और 4 चैप्टर हमने छोड़ दिए। वो चैप्टर हमने छोड़ दिए कि भाई हम 4 चैप्टर लास्ट के बायोमोलिक्यूल्स छोड़ दिया, ठीक है, समझ आए, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, छोटे मोटे 4 चैप्टर छोड़ दिए कि वो जनवरी में करा देंगे। जैसा होता था, मैं 2019 की बात कर रही हूँ, 2020 तक भी कि जनवरी में कर लेंगे और क्या है, हम अपना जेईई पे फोकस करते हैं। सो बेटा पेरेंट्स
मैडम सिलेबस तो पूरा नहीं हुआ, बच्चे का प्री बोर्ड आ रहा है, तो अब तो उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोच, उसको प्री बोर्ड में 70 में से पेरेंट्स ने कहा 60 भी चाहिए, तेरा जेई मेंस आ रहा है, मुझे ये भी चाहिए। अब अगर वो बच्चा 4 चैप्टर छोड़कर इस वक्त जेई की तैयारी कर ले, जो कि पहले अप्रैल में होता था, है ना, 2019 से पहले अप्रैल में होता था, तो अपना खत्म। फिर हमने जनवरी में वो 11 चैप्टर पकड़े, फरवरी में बच्चे ने प्री बोर्ड प्रैक्टिकल वगैरह लेके मार्च में पेपर दिया और जेई की तैयारी हो गई। लास्ट मोमेंट के लिए आपका जेई नहीं बचा। पेरेंट्स आर रेस्टलेस, सो मेनी पेरेंट्स आर रेस्टलेस। जैसे नहीं वो आप छोड़ दीजिए, सो बेटा आप छोड़ दीजिए, आप इसको पहले बोर्ड का ही कराइए। थोड़े दिनों के बाद मैडम उसके उस चैप्टर का क्या हुआ, वो वाला चैप्टर क्यों रह गया। तो ये जो बात है, ये जो समझदारी है कि हम अगर 4 चैप्टर छोड़ भी दें तो बच्चे को हम एनालाइज बचे हुए चैप्टर्स पे कर सकते हैं, 60 मार्क्स पे कर सकते हैं, उसमें से देख लेते हैं कि उसके 55 आए कि 54 आए, 53 आए, फिर तेरे 7 नंबर कहाँ गए, हम उन गलतियों पे काम करेंगे और काम ठीक कर लेंगे। तो बेटा इट्स अ मैटर ऑफ पेरेंट्स बीइंग पेशेंट, ऑल्सो पेशेंस है उनके पास। तो लॉट ऑफ पेरेंट्स, अब इतनी सेंसिबिलिटी के साथ हार्डली यू गेट वेरी फ्यू पेरेंट्स because herd mentality is there। उस सामने वाले बच्चे के अगर प्री बोर्ड में भी इतने अच्छे हैं, तेरे साथ का ही तो है ना, तेरी क्लास में तो पढ़ता है ना, तेरे साथ ही तो कोचिंग में जाता है, उसके वहां भी तो अच्छे आ रहे हैं, नहीं फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है। एंड दे टॉक टू मी लाइक दैट ऑल्सो, नहीं मैडम करना तो पड़ेगा बच्चे को, नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, ये प्रेशर तो लेना पड़ेगा इसको। बिना प्रेशर के तो कई बार मेरा मन करता है उनसे पूछने को, आप लोगों की लाइफ में कभी इतना प्रेशर था? आप लोग स्कूल गए, 2 घंटे पढ़े, कोचिंग होती नहीं थी, ट्यूशन होती नहीं थी, अपना आपने सारा टाइम खेला, रात को 11 बजे तक मैक्स सो गए, सुबह आप स्कूल चले गए, आपने कभी उतना प्रेशर झेला? कई बच्चे मुझे कहते हैं माधव कि मैम हमने 2 साल सिर्फ यूनिफॉर्म में पहनी है स्कूल की। मैंने कहा बेटा क्या मतलब? कहते मैम सुबह उठ गए, एक पेरेंट ने भी कहा, कहते मैंने तो उसको यूनिफॉर्म नहीं देखा मैडम। क्यों? वो सुबह उठ के बच्चा 6 बजे स्कूल चला गया, ठीक है, स्कूल चला गया, वहां से सीधा कोचिंग चला गया, ठीक है। अब बच्चा 6 बजे उठ के चला गया तो पेरेंट को बाय बोला स्कूल यूनिफॉर्म में, उसके बाद उसी यूनिफॉर्म में वो कोचिंग में चला गया, ठीक है, करते करते वो 8 बजे घर पहुंचा, ठीक है, तब तक या तो फादर नहीं आए या वो खा के सो गया, खाना खाया सो गया, मिला ये पेरेंट ने फिर देखा क्या तो सुबह 6 बजे भी यूनिफॉर्म में था तो रात को 8 बजे भी यूनिफॉर्म में है। तो बच्चे कहते मैम हमने तो जिंदगी, ऐसी जिंदगी मैंने तो नहीं जी बेटा, ऐसी जिंदगी इनके पेरेंट्स ने भी नहीं जी होगी। फिर ये भी चाहते हैं, इसलिए ये जो तूने एक अच्छी बात बोली कि क्या हम इसको कर सकते हैं, बट उससे पेरेंट्स को सबसे पहले एक पेशेंस के साथ लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो इतनी रेस्टलेस सोल है, वो इतनी हर्ड मेंटालिटी से जी रहे हैं कि ये अगर सुखी रहना है तो ये 5 चीजें तो होनी चाहिए। एक ऐसा बच्चा जो इंटेलिजेंट हो, ठीक है, ताकि हम उसको ट्रॉफी की तरह डिस्प्ले कर सकें। भाई अगर मान लो उसके मैथ्स में नंबर कम है या फिजिक्स में कम है, केमिस्ट्री में कम है, किसी और सब्जेक्ट में, पर आप ये देखो ना वो गिटार कितना अच्छा बजा रहा है, तो मानेगा नहीं। एक बच्चा मेरे पास इतना अच्छा गिटार, साइंस का बच्चा, इतना अच्छा गिटार, उसको म्यूजिक ही परस्यू करना था फ्यूचर में। व्हाट द मॉम हैज टू से, मॉम सेड मैडम इसने नाक कटवा दी। मैंने कहा क्यों? कहते हमारे खानदान में सब साइंस पढ़े हुए हैं, ये कहते हैं कि इसको साइंस नहीं पढ़नी है। अब इस बात को लेके पेरेंट्स ने स्टेटस सिंबल बना दिया कि बच्चे को क्योंकि म्यूजिक पसंद है, तो फिर हमने बात की, हमने कहा बेटा ऐसा है तो यही कर। अभी बाद में उसने वो ही किया फिर, क्योंकि बच्चा, मुझे बड़ी फक्र है उस पर, तो मानेगा नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत जिद्दी था। उसने अपनी जिद पूरी करी, उसने पेरेंट्स की भी बात मानी, उसने कहा ठीक है मैं 12th साइंस में कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं म्यूजिक परस्यू करूंगा। वो कोचिंग भी चाहता था, राइट। उसके बाद एक तो म्यूजिक सीखने के लिए दुबई चला गया, ठीक है, पेरेंट्स हैड मनी, दे कुड स्पॉन्सर। दूसरा गुड़गांव में है, सो वो, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है ना कि बच्चे का। अब ये जो तुमने बोला ना इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं, ये चेंज तो बेटा कभी होगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि बच्चा अपनी चॉइस का पढ़ रहा है। फिर अगर वो अपनी चॉइस का पढ़ रहा है और फिर भी उसके नंबर कम आ रहे हैं, तो क्या आप इतनी मेंटल स्ट्रेंथ रखते हैं
कि आप बच्चे को बोले कोई नहीं बेटा तू 3 चैप्टर ही पढ़कर जा 5 में से, नंबर इज वेरी लेस। वैसे तो ह्यूमन की नेचर है हर्ट को फॉलो करना। देख मारा एक मिनट, एक तू जिंदगी के एक्सपीरियंस से समझ, तुझे सामने 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता है, जैसे एक रास्ता है जिसमें आपको पता है कि पगडंडी बनी हुई है, ठीक है, जंगल की बात कर लेते हैं, पगडंडी बनी है तो आपने सोचा हाँ भाई यहाँ से गांव वाले निकलते होंगे तो ये सेफ है, यहाँ पर जंगली जानवर का खतरा नहीं है, तो आप उसी रास्ते से कोशिश करेंगे। आपके सामने एक और रास्ता भी है, राइट, आपको पता है कि ये रास्ता भी वहीं जाता है, पर वहां पगडंडी नहीं बनी हुई, वहां कोई नहीं चला हुआ, तो आप 100 बार सोचोगे और शायद ना जाओ। लेकिन अगर आप 100 लोगों का ग्रुप है, एक जरूर होता है या 2 जरूर होते हैं, नहीं यार क्या हो गया चलते हैं, तो दैट इज व्हाट हमारे इसमें कह दिया। ये 4-5 चीजें हैं, ये 4-5 चीजें करने से आप लाइफ में सेटल हो जाएंगे। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा लाइफ में सेटल ये 4-5 चीजों से ही हो जाए। प्रूव्ड है, ऑलरेडी देखा वाला रास्ता है, पगडंडी है, तो बहुत सारे लोग पहले चले हैं, तो आप क्यों एक नए रास्ते पे चलना चाहते हो? क्योंकि उसके आगे की आपको चैलेंजेस नहीं पता। तो पेरेंट्स ना, इंडियन पेरेंट्स तो खासकर, हम बहुत प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चों को। चैलेंज उनको बचपन से ही लेने से रोक दिया जाता है, या फिर कुछ ओवर चैलेंज। जैसे आई रिमेम्बर जब मैं बहुत साल पहले तुम्हारे स्कूल में थी, तो आई वाज स्टैंडिंग देयर, एक पेरेंट आए, कौन सी क्लास में है बच्चा? 3rd क्लास में। प्रिंसिपल से क्या कह रहे हैं, सर वो आर्यभट्ट की तैयारी कब करवाएंगे आप? आई जस्ट लुक्ड अराउंड, 3rd क्लास के बच्चे की आर्यभट्ट की तैयारी? तो प्रिंसिपल ने बोला कि जस्ट वेट, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए। या तो इस टाइप के पेरेंट्स हैं, ओवर कॉम्पिटिटिव, खुद चाहे आर्यभट्टा नहीं दिया होगा लाइफ में, पर बच्चे को आर्यभट्टा भी देना है, राइट। दूसरे जो कह रहे हैं सिक्योर्ड रास्ते पे चलो, यार इन सब में बच्चे से तो पूछ लो ना यार वो क्या करना चाहते हैं। हाँ, बच्चे भी कई बार कंफ्यूज होते हैं, उनको भी नहीं पता होता, तो यू स्टैंड देयर एज अ पेरेंट, लेट देम चूज देयर पाथ, लेट देम डिसाइड। हो सकता है गलत रास्ता भी चुन लें, तो कोई नहीं, साइंस डिसाइड करी, अच्छी लग रही थी, नहीं मन हुआ, कॉमर्स करने का मन है, ह्यूमैनिटी डिसाइड करी थी, तो अब बच्चों को म्यूजिक पढ़ने का मन है, आप में हिम्मत है। माधव बेटा 10% पेरेंट्स हैं, बाकी तो कहेंगे बस हम यही करें, पूरी जिंदगी लगा दी तेरे पीछे, तेरे कमरे में एसी है, हमारे कमरे में एसी नहीं है, तेरे लिए हम जिंदगी जी रहे हैं, क्यों जी रहे हो? जब तक पेरेंट बेटा बच्चों की जिंदगी, मतलब वो अपनी सारी जिंदगी बच्चों पे फोकस कर देते हैं और फिर लास्ट में क्या चाहते हैं, अब ये हमारे लिए जिंदगी जिए। जब तक माधव ये बंद नहीं होगा ना बेटा, ये मैच्योरिटी वाली जो तूने बात करी ना कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप आ जाती है बेसिकली एक पॉइंट के बाद। सारा टाइम तो यही है, हमने तुम्हारे लिए किया, तू आसपास समाज में यही सुनता है ना, हमने तुमको बड़ा किया, तुम्हारे लिए हमने अपने जीवन के सारे सुख छोड़ दिए। भाई आप ये बात बताइए, बच्चे ने कब बोला था आप छोड़ दीजिए? आपने खुद चूज किया कि आप घूमने नहीं जाएंगे क्योंकि आपको बच्चे के मंडे टेस्ट में 100/100 नंबर चाहिए थे, तो आपने कहा नहीं हम वीकेंड पे घूमने नहीं जाएंगे। बच्चा तो तब घूमना चाह रहा था, पर आपको 100/100 में तब ज्यादा इंटरेस्ट था। फिर तो दैट इज व्हाट, तो बेटा इसलिए बच्चा वो तभी हो सकता है, वो जो है 10-20% पेरेंट हैं जो अपने लेवल पे वो समझदारी रखते हैं और वो बच्चे के साथ खड़े रहते हैं और ऐसे ही उसको शाबाशी देते हैं। कोई नहीं काके, कोई नहीं, 30 भी नंबर बहुत है 40-50 में से, अगली बार यही हो, चल 35 भी बहुत है, बट हाउ मेनी आर देयर? वेरी वेरी फ्यू, क्योंकि उनके एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं। टीचर तो देख बेटा ज्यादा तभी कुछ कर पाएगा अगर पेरेंट्स साथ हैं। उसके लिए सबसे पहले तो बेटा ये फैक्टर ठीक करना पड़ेगा ना, पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि हमारा बच्चा एक इंडिविजुअल है, वो हमारे थ्रू आया है, बट वो अपने आप में एक इंडिविजुअल सोल है, उसका अपना एक ट्रेट है, करेक्टर है, वो आपके जैसे लग सकता है शक्ल में, आपकी बहुत सारी बातें भी उसके साथ मिल सकती हैं, पर फिर भी उसका अपना एक जेनेटिक्स पार्ट है जो आपसे बिल्कुल अलग है। तो जब तक आप वो नहीं मानोगे ना बेटा, I don't think at home level it can be done। और जहां हो रहा है वो तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पेरेंट्स पहले से सेंसिबल हैं, वो तो इसीलिए कर ही रहे हैं। इसलिए आई होप वो ग्रास रूट पे वो चीज चेंज करनी पड़ेगी ना आपको। राइट।
बट अगर किसी को अगर सपोज करो म्यूजिक में अपना करियर बनाना भी है तो उसके लिए तो एक तरीके से आप ये देखो ना कि एक फाइनेंशियल बैकिंग भी चाहिए. सपोज नॉर्मली मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास इतनी अच्छी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती है, तो द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड इज इट मीन्स टू थिंग्स टू देम. एक उनका बच्चा जो है वो एक तो ग्रूम हो जाएगा, अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ कर जाएगा, और साथ साथ ये होता है कि इट इज ऑल्सो एन एस्केप राउट कि उनकी फैमिली की कंडीशन भी सुधर जाएगी. तो आपको नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी पेरेंट के लिए एक्सेप्ट करना कि मेरा बच्चा पढ़ाई से हट के अगर वो म्यूजिक में जाना चाहता है, तो उसके बहुत सारी चीजें उसमें बहुत सारे दाव पेच वगैरह. मैंने लेटेस्ट पढ़ा है, द बिगेस्ट फियर ऑफ ह्यूमन इज टू एक्सेप्ट the uncertainty. मैंने तेरे को बोला ना, we want to be safe. We don't want to take risk. वही जंगल के दो रास्ते. ये डर है बेटा, ये सिर्फ हमारा डर है जो हमें वो बता दिया ना कि ये 4 प्रोफेशन है, इनमें नौकरी मिल जाएगी, चल तू 20,000 रुपए तो कमा, अपना तू खाने पीने का बर, फिर साइड में तो म्यूजिक करता रहे. बट हाँ, तुम म्यूजिक इधर कर ले और इंजीनियरिंग साइड में हो जाएगी, ये नहीं हो पाएगा. बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट दैट पेन. हमें वो पेन नहीं लेनी. हमको ह्यूमन है, सब लोग यही चाहते हैं, कोई पेन नहीं लेना चाहता, पर हम कुछ ज्यादा ही डरे हुए होते हैं. हमको पेन चाहिए नहीं, हम सेफ चलना चाहते हैं. सब लोग हैं, हम भी खुश रहना चाहते हैं, सब है. लेकिन वो पेन, वो अनसर्टेनिटी कि अगर म्यूजिक में तेरा नहीं हुआ, अब इंजीनियरिंग तो कम से कम है. अब देख बेटा, इंजीनियरिंग में भी तो कितनी अनसर्टेनिटी, कितनी ज्यादा है. तो ये बेटा जो फियर है ना, ये इंसान को कमजोर बना देता है. वो सबको, ये हम कुछ ज्यादा ही कमजोर हो जाते हैं. तो जब हम वो फियरलेस नहीं चलेंगे, हाँ मैं तेरी ये बातों से सब एग्री करती हूँ कि सरवाइव करने के लिए मनी तो चाहिए. कल बच्चों को लाइफ सेट करना है, उसको बस कुछ तो एक फाइनेंशियल होना चाहिए. पेरेंट्स भी अपनी जगह सही सोच रहे होते हैं, पर कई बार लाइन बहुत ज्यादा ही ब्लर हो जाती है, क्रॉस हो जाती है. तो काइंड ऑफ, तो बेटा कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगा ना, कहीं तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना. I think most of the times it is like a catapult कि आप पीछे जा रहे हो, लेकिन ऊपर जाने के लिए ही आप पीछे जा रहे हो. अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो पीछे एक बार जाना पड़ता ही है. पीछे नहीं जाओगे तो ऊपर नहीं जाओगे फिर ऑटोमेटिकली. जितनी मेरे को प्रॉब्लम फील होती है ना, वो ये आती कि मैंने तो कहा था वाली बात हो जाती है ना, कि अगर तुमने बात मान ली तो फिर तो वो सारे दरवाजे बंद ही हो गए जो तुम करने वाले थे. फिर तो तुम सेफ रोड पे चल ही चुके हो. और अगर आपने बात नहीं मानी और गलती से कुछ गलत हो गया, जो वैसे नॉर्मली हो ही जाता है, तो फिर 4 लोग आ जाते हैं बोलने के लिए कि मैंने तो कहा था, मैंने तो तुझे बोला था. वो और ज्यादा डिमोटिवेटिंग हो जाता है. नहीं, वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम उसको ज्यादा सुनो ही मत. बट एक बच्चा कैसे इग्नोर करे उस चीज को? बच्चा थोड़ी इग्नोर कर पाएगा. मैंने बोला था बेटा, या तो बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा. देख काके, इस चीज को अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे काके, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. अब मैं अपने सिबलिंग्स में देखती हूँ, मैं मेरी सिस्टर ब्रदर सिबलिंग्स में देखती हूँ. आई वाज द मोस्ट रिबेलियस इन द टर्म क्वेश्चनिंग. माय सिस्टर राइट. चल, सो पॉइंट क्यों, राइट. माय सिस्टर यूज्ड टू से, दीदी इट्स ओके ना, क्यों बहस कर रही है. सो बेटा इस चीज को हम डिस्कस नहीं कर सकते. Every human is born with their genetic setup. उनको लाइफ में कैसे चलना है वो उन पे छोड़ दिया जाए. वो अपना कोई ना कोई लेवल चुन लेंगे. अगर हम उसको बोला हम इसको सिखाने जाएंगे कि रेबेलियस हो जाओ, तो तुम नहीं सिखा सकते. हर कोई अपने ढंग से लड़ेगा और जिंदगी जी के आ ही जाएगा. आपको क्या बेकार में बोलने की जरूरत है. देख अब तेरी जिंदगी की जो हालत टाइट हो रही है ना, इसीलिए हो रही है क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी. अरे उसका पर्सपेक्टिव था, कुछ कर सकते हो तो एक मॉरल सपोर्ट दे दो. नहीं कर सकते तो कम से कम जज करना तो बंद करो ना. एक बड़े मतलब ऑफ टॉपिक बट राइट एड्रेस कि जैसे बच्चे केमिस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं, आप क्या एडवाइस देते हो कि केमिस्ट्री को कैसे टैकल किया जाए? खासकर लड़कों को तो बड़ी दिक्कत आती है भैया. बेटा सिंपल सी बात है, लड़कों में एटीट्यूड बहुत होता है क्योंकि उनको बचपन से बता दिया जाता है कि तुम तो देखो भाई इंटेलिजेंट बहुत होते हो और रटने रुटने के काम ना लड़कियां कर लेती हैं. इसमें बेटा कोई शक नहीं है कि जेनेटिकली जो है सेटअप बॉयज एंड गर्ल्स का बिल्कुल अलग है. मैथमेटिकली प्रूव्ड है.
लड़कियां इतनी बातें क्यों करती है, मुझे छोटा सा एग्जांपल दूं, क्यों इतनी बातें करती है। तो उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा था कि सालों पहले जब एक लड़की माँ बनी, अब उनके पास एक बच्चा है, वो बच्चे को पीछे बांध देती थी और काम भी कर रही हैं, और बच्चा रोया तो उससे बातें करती हैं, तो वो जो बात करते करते वो बच्चे को संभालते हुए काम करती थी, वो उनका जेनेटिक जो चेंज हुआ वो आज ये हो गया कि गर्ल्स आर चैटर बॉक्स, बहुत बोलती थी, ठीक है, वो हो गया। मैं मानती हूँ बिल्कुल कि लड़के और लड़कियों का जेनेटिक सेटअप अलग है। लड़कियों का इमोशनल क्वोशंट कितना स्ट्रॉन्ग है, बॉयज आर नेवर सो इमोशनली स्ट्रॉन्ग। लड़के मैथ फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं। अब मैं तुझे ये बात बताऊं बेटा जी, तो लड़कों को केमिस्ट्री की प्रॉब्लम आती है, ये अब देख, जैसे अर्चित रैंक 1 होल्डर, उसको मैंने पढ़ाया है ना, तो 2012 में उसका था, तो केमिस्ट्री उसकी उतनी ही बढ़िया थी जितनी किसी और की होगी। वो लिख के बहुत पढ़ता था, और शायद उसमें ये एक्सेप्टेंस थी कि भाई केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़ते हैं, एटीट्यूड कम था। तो वेरी ऑनेस्ट बच्चे, जब बचपन से तुम्हें बता दिया जाएगा कि ये कार है, ये लड़के का टॉय है, और डॉल लड़की का टॉय है, तो लड़कियां डरेंगी ना। सिमिलरली बचपन से बता दिया भाई लड़के रोते नहीं है, लड़के तुम रो लेना, लड़के रोने से डरना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि वो क्राइंग इज अ नॉर्मल इमोशन, तो उनको बता दिया गया अरे लड़के नहीं रोते। सिमिलरली लड़के रटते नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? लिख के याद करो बेटा, प्रॉब्लम इज सॉल्व, बट जस्ट ब्रिंग योरसेल्फ डाउन। इट्स ओके अगर मुझे कुछ नहीं आता है, एंड इट्स ओके टू लर्न समथिंग। हम बहुत कुछ याद कर सकते हैं, केमिस्ट्री की बेटा बस यही प्रॉब्लम है, उसको लिखना है, याद करना है, लिखना है, याद करना है, और कुछ नहीं है। तो मतलब एटीट्यूड और ईगो है बस बीच में, अदरवाइज ऐसे कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ा आ जाता है ना बेटा, क्योंकि हमेशा यही बोल दिया जाता है रटने का काम छोटा मोटा काम हम नहीं कर सकते, हमें सिर्फ समझ आते हैं। अच्छा बे, ओहो फिजिक्स सारी समझ आई तेरे को, कितना कुछ घोटा, डेरिवेशन ना घोटे तुमने, मैथ्स में समझ आ गई, कितनी कुछ पाइथागोरस थ्योरम और इधर उधर की बातें, तुमने फॉर्मूला ही तो रटा ना, a+b² क्या था, याद करो, थोड़ी प्लानिंग से याद करो, धीरे धीरे करके याद करो, एक ही दिन में मत याद करो। 15 रिएक्शन जो याद नहीं हो रही, मैं बताती हूँ, जैसे मैं बच्चों को बोलती हूँ एक पेज पे लिख लो बेटा और दीवार पे चिपका दो, रोज आते जाते वो 15 रिएक्शन देख लो, कोई एफर्ट नहीं करो कि मुझे रटनी है, 10 दिन में याद हो जाएंगे, भूलेंगे नहीं। पर जब आप जबरदस्ती उसको ओवरनाइट याद करोगे, कल पेपर है आज याद कर लो, वो होंगी नहीं, भूल जाओगे कुछ, क्योंकि हो चुके हैं हमारे साथ, तो हम ज्ञान बांट सकते हैं, because I have already sailed in the same boat। और इनऑर्गेनिक सुबह ऐसे बोरॉन याद करेंगे, एग्जाम में लिख देंगे, वो याद गया, मैं वही भूल गई। तो दिस इज व्हाट यू लर्न। तो बेटा इसलिए एक ही तरीके का केमिस्ट्री का, तो लिखो याद करो, लिखो याद करो, उन्हों में इधर उधर कर दो, ज्यादा ये नफरत जितनी करोगे ना वो उतना दूर भागेगी। उसको बोल दो केमिस्ट्री को प्यार चाहिए, बस प्यार चाहिए, अवॉइड करोगे तो थोड़ी सी एटीट्यूड आ जाता है उसको भी। मेरा वर्जन तो ये बनता है कि जैसे सपोज एक चैप्टर है, मान लो हैलोकेन्स हैलोरीन्स है, तो उसको 2 हिस्सों में बांट दो, प्रिपरेशन अलग कर दो और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग कर दो। प्रिपरेशन में भी उसको बांट दो, जिसके नेम रिएक्शन है और जिसका नेम नहीं है, तो उसको एक आध दिन दोगे ना, वो अपने आप याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जितना सेग्रीगेशन करोगे उतना ज्यादा अच्छा है और वर्क करता है काफी। हाँ एग्जैक्टली, पी ब्लॉक में का सारे स्ट्रक्चर एक साथ याद कर लो, एलिमेंट्स एक साथ कर लो, कंपाउंड्स अलग कर लो, एलिमेंट्स की वो सेग्रीगेशन कर लो, याद हो जाएगा। एनसीईआरटी को लेकर मत बैठो, उसके नोट्स बना लो बेटा, आसान हो जाएगा। 100 का एक लिखा, बस वही वाली। चलो लास्ट, एक कोई भी एक ऐसी चीज जो आप किसी पेरेंट, टीचर या स्टूडेंट को एडवाइस करोगे, सिर्फ एक। खुश रहें और खुश रहने दें। ये तो कल होना वाली बात हो गई। तो नहीं बेटा, यही है, एवरीबॉडी वांट टू बी हैप्पी, तो इसलिए खुश रहो। बच्चों पे एहसान मत करो कि तुम उनको पढ़ा रहे हो, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि उनको दुनिया में आना है, लाए तो तुम ना,
अब लाके यार एहसान तो मत करो, बस इतना मान लो, थोड़ा स्पेस दे दो उनको तो तुमको देंगे। एक्सपेक्टेशंस कम कर दो बेटा, वो जैसे हैं उनको वैसा मान लो। नौकरी वो नहीं मिली जो आप चाहते थे दिलाना, कोई नहीं, पर इतनी हिम्मत दिखाओ और खुश रहो, खुद भी रहो, उनको भी रहने दो। एडवाइस पेरेंट्स के लिए था। अकेले पेरेंट्स नहीं है, बच्चे भी बराबर के ही हैं। कई बच्चों को पेरेंट्स कहते भी नहीं तुम्हें नंबर लाने हैं, लेकिन वो पता नहीं कैसे अल्टीमेटली उस प्रेशर में फॉल कर जाते हैं। इस पे खुश रहना बेटा बहुत जरूरी है। खुश हो तो सब कुछ हो जाता है माधव, इवन यू नो। आपका दिल खुश है तो आप अच्छा अच्छा सोचते हो, फिर अच्छा अच्छा करते हो। आप सैड हो तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो आई वांट चिल्ड्रन हैप्पी, वो हैप्पी हार्मोन बहता रहना चाहिए अंदर। डीपीएस की कोई अच्छी मेमोरी आपकी? Oh, lot of. If I would like to go back, then DPS will be one of the schools. Now, I don't want to be a regular teacher, that's another thing, because I've got some other priorities. I'm more happy with my birds around and my plants and the small things. A lot of memories. The children, the way children used to celebrate the Teachers' Day, at that time I really can't forget. It's not about DPS. DPS से पहले भी I was in उदय भारती, जो अब स्कूल ही नहीं है, फरीदाबाद में, राइट? वहाँ पे भी बहुत अच्छा, मतलब वो बच्चों का एक रियली ऐसे लुक अप टू करके देखना, वो ब्यूटीफुल मेमोरीज आई डू हैव। तो बोलता तो मैं दिखाती जो बच्चों ने उस वक्त दिए, और अगर वो संभालने वाली चीजें हैं तो मेरे पास अभी तक है। मेरे पास वो सारे कार्ड्स। हाँ, बच्चों के नाम याद है आपको? हाँ, मधुर एंड मींस वो विशाली, दीपाली तो है ना, एंड लॉट ऑफ वो ट्विंस, ब्रदर सिस्टर, और वो जिनको मैं जयवीरू तो 2016 के थे, वो जो एनफील्ड चलाता था, उसका नाम क्या था? नाम तो आप एनफील्ड नहीं थी वैसे, वो एवेंजर थी वैसे, वो एवेंजर सानू मुझे खुद ही याद आ रहा था। और वो ट्विंस, ब्रदर एंड सिस्टर मेडिकल के थे, जिनके दोनों का ही एमबीबीएस हुआ। लास्ट में कोने में उधर की तरफ बैठते थे, उस दरवाजे की साइड बैठते थे, ट्विंस ब्रदर सिस्टर थे। हाँ, बहुत सारे हैं बेटा, रुक जा, मुझे याद नहीं आ रहे। अब सानू याद आ गया, चल बताऊंगी अगली बार, डोंट टेस्ट मी मोर है ना। चल अगली बार बताऊंगी और कौन से याद है, बट somehow the vibes are there, मेरे साथ कनेक्शन हो गया। वो अचानक हम लोग कहाँ मिले ना, याद है ना, रेलवे स्टेशन पे मिले थे, मेट्रो पे मैं जा रही थी, आई सॉ यू, मेट्रो पे जा रही थी, पहली बार दैट वाज माय मेट्रो, कि मुझे अपनी फरीदाबाद मेट्रो में बैठना है। 2016 नहीं 16 में मेट्रो नहीं थी, क्या बात कर रहे हैं? It was 2016. मैंने फ्रेश स्टार्ट किया था उस टाइम, मतलब पढ़ा तो रहा था बट इंस्टीट्यूट फ्रेश स्टार्ट किया था, और मैंने पहला कार्ड आपको दिया था। हाँ, अच्छा, मेरे पास था तब, तेरा सेंटर दूसरी साइड था, 21D में। हाँ, एग्जैक्टली 2016 था। 2016 हो गया माधव, see the time flies by so fast. I am just so surprised. So उससे पहले बीच बीच में वैसे बात हुई थी, बट इतने कंटिन्यूअसली नहीं हुई थी। देन आई गॉट इन टच विद यू अगेन इन कंटिन्यूएशन, जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था, और मैं बिल्कुल ही ऐसे दिमाग घुमा होता, क्या करूं क्या ना करूं, तो आपने बोला था छोड़ परे। हाँ, कि कहाँ अटेंडेंस रजिस्टर बनाता है। तो ये बात बताना, वही तुम जो बात कर रहे थे, इट्स ऑल पर्सनल, कि तेरे को रिस्क लेना है लाइफ में। इसलिए वो जो पॉइंट पे हम बात कर रहे थे ना, उसका कभी जवाब नहीं मिलेगा। तो अगले 10 साल बाद भी पूछेगा या ढूंढेगा, कभी नहीं मिलेगा। 10 की उसमें से एक ही तो बच्चा होता था क्लास में भी जो बड़ा रिस्क लेता था, है ना। टीचर से वो सवाल पूछता था, जबकि बाकी सबकी बैंड बजी होती थी कि टीचर बहुत खतरनाक है, और वो एक उठ के लेता था कि नहीं लेता था, है ना। बट आई फील हैप्पी। कौन से नाम है? हाँ, मेरे को लिस्ट भेज देना, पक्का भेजूंगी। चल, हमें डायरी निकालूंगी, पूरा कार्ड्स का डब्बा है। मैंने अब तक 94 से लेके अब तक जितने भी कार्ड्स बच्चों ने दिए, मेरे पास सारे सहेज के रखे हुए हैं। बॉक्स अभी इधर नहीं है, फरीदाबाद में है, तो जब जाऊंगी, अलमीरा है मेरी एक पर्सनल अलमीरा, मैं और मेरे बच्चों की जो मेमोरीज हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग।
It is so difficult for me to, because उसमें इतने emotions involved थे, चाहे वो बच्चा मेरे से नहीं भी है, पर उस moment पे वो जो emotion था through which, so those things are there, है ना? छुपाओगे बताना जरूर। हाँ पक्का, तो घर आएगा बर्थडे पार्टी होगी, ठीक है कि नहीं है? चल डन। Lovely talking to you as usual, ठीक है? Same here, ma'am. Thank you so much for joining. And that really matters. Smiles attract people, positive energy around, and that's very important. When you smile, people feel like talking to you. And when you have got all the time sadilu face, nice. Nah, you may be good at heart, but the smile, for me, it really matters. That how many people are happy and smiling. ठीक? Right. Chal, good luck to you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for joining in. It's my Have pleasure. a great day. Right. Same Thank here, you, ma'am. Seth. Same here. Okay. Bye-bye. Oh, okay, ma'am. Bye-bye. Bye.